and all HOD, faculty, staff, students, and everyone present in the audience. Our speaker, Dr. Engineer Chandrakantji Purare, he is coming and he will give the solution for the same. In this agroscope, it was discussed that considering this 2025 as a base year, and we have to form Symbiosis Institute of Business Management. So with this, I request Dr. Asivar sir to say a few words about this country. Thank you. Thank you, Dr. Ramtekji. Today's speaker, that is Chandrakant Purare, on the dais, Associate Dean and Principal, College of Agricultural Engineering, Dr. Ramtekji Saab, then Dr. Sirsagarji, then Dr. Jaya Mangali Madam, all the head of department, professors, students and staff. So, this is a very important lecture on the planning and wealth management, because we are very lacking in that, because our knowledge is our wealth. Our knowledge is only wealth, and we are not considering as a wealth, because whatever in our career, we are more focusing on the knowledge only. That's why this is very much important for us, this lecture on the planning and wealth management. And generally, whatever the schemes are there, insurance schemes are there, then the mutual funds are there, we are having some contact with them, but we are not perfect in that. What to do, where to invest. Insurance companies are also, many are there. Then LIC companies are there, but where we have to invest and how to invest, that is a very important point. And in day-to-day life, I think we are not getting time also. There was a meeting morning at 12:30 to 3:30 about this Akroti Bandh, and I was busy in that. And now also this meeting is there. Just I came here, just I will address you few words, and I am very thankful to Chandrakant Purare sir that he came here and he is guiding to all staffs of the Agriculture University for how to make the planning and wealth management. I welcome Dr. Honorable Vice Chancellor of the Dr. Indramani sir, offering a shawl and bouquet. Will join online. Thank you, sir, for joining. Can you guys check? Welcome, sir. Thank you for joining. We have just now started the program. Felicitated Thank you. Mr. Punareji on behalf of university, and program is started just now. I would like to request sir for few words to for the audience. Yes, sir, you are audible. You are audible. Okay. I appreciate your effort to organize this program. Engineer Turare is, my old friend. I had first meeting with him in Mumbai at Ashby House. It was in 2018 when ISA, Indian Society of Agriculture Engineers, and American Society of Agriculture and Biological Engineers together first time organized the second international event of Asabe outside America. Both Asabe and ISA president should visit SB, and that's how we met there. And Mr. Turare was there, and
He, in fact, there only invited me for Tiffan event in Pune. And I participated there. The whole team was there. And since then, we have been in touch. He's a BTech Agricultural Engineering, and this morning I met him in my office. And Dr. Tekale is his classmate. And Madam Solanki is 3 years senior to him. So he will guide you regarding your this wealth management. And it's very, very important. He has a lot of experience and expertise in this. And I thought that it will be good if we organize this event and learn from him this finance management and wealth management. In fact, wealth management has become a very important area. As an individual and as an organization also. So there's a lot of rational, lot of acumen in this, and I have actually a program at KBK Tuljapur, and that's how I'm traveling. I have to reach there, and then tomorrow in our I visited to Latur and Chakur. In Chakur College, we have an Omen business entrepreneurship mela. So otherwise, it would have been nice that I would have been present there. Moreover, my friends will get benefited, and I invite, I in fact encourage you all to listen him and interact with him. And our university is trying to get experts from different arena and different sectors to make us more wise, make us more practical, make us more pragmatic, and make us more smart. With this, once again, welcome, Dr. Turare, very much. And I request Ram Tekji to proceed ahead. Best wishes, my best wishes. Thank you. Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Indramani, directors, deans, associate deans of the different faculties, colleges, head of the department, professors, faculties, and students. So this is my first visit to Parbhani. So I want to thank Professor Dr. Indramani and Dr. Ramteke for inviting me to have the interaction with you on a very interesting topic, personal finance and investment. I'm quite excited to be here as I'm getting the opportunity to talk to you. Just last week, I was at Rahuri. We had a very good interactions with teaching and non-teaching staffs, and I was quite impressed with their interest in this subject. So I decided that, yes, let's have these sessions at different places, not only in Maharashtra, but other places. Okay. So personal finance is a very broad topic. Even if you spend few days, it's not enough. We got about 1 hour. So what I will do, I will try to provide you some of the overviews of important assets, where to invest, how to invest. And if somebody is more interested, definitely I'm guiding them in the further investment areas. Okay. I know you might have a lot of questions in your mind, okay, because finance is a topic of everybody's interest. I will suggest we have this
questions at the end of the session, so that will spare some of the time, because the discussions is ongoing. And if you start discussion in between, that's it's difficult to control it. Okay. So पैसा सबके लिए प्यारा है. So I will be talking in English and Hindi. Okay. Normally I speak also in Marathi, but sir is there, so I will just use the two languages. Okay. So पैसा सबको प्यारा है, and definitely we must take the interest in that. Okay. वो जमाना गया है कि जो लोग पैसे की बात करते तो उनको बुरा समझा जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. Reason is that all of you are working hard. You are doing the jobs in government organizations. Some of, people might be having the businesses, okay? And we are earning money, okay? So when it comes to the education, in India, education literacy is very high. I will say up to 90% people are now able to speak and also read, right? Okay, that's a great thing. But when it comes to the financial literacy, this is where there is a big gap. We have doctors, we have engineers, scientists, okay, very learned people. But when it comes to the knowledge on the finance, they are very poor. Okay. Many of the people think that they know a lot of things, but when we interact them, in fact, their depth of knowledge is very low. And that is the reasons many times they are duped, they are scammed. Okay. So what we have to do, you must know at least where to invest, how to invest. And if you see the financial literacy in other countries, like developed countries, America, Europe, where the financial literacy is very high, 70 to 80%, people know what is the investment, what is the demat account, everything. But India, it's hardly 20%. Imagine, as 20%, we have the very big scope to improve this financial literacy. And that is why we have taken the mission. Now, mission is how we can educate the people on the finance. Okay. Many times we are getting the suggestions from the people that this topic should be included in the schools, colleges. Yes, we definitely recommend that. But that is not happening the way it should be. So that's the reasons 5 years back, we started a smart investment initiative to educate the people on the personal finance, help them to know what are the different assets, investment area. So this is where I am on the go. So whenever I get an opportunity, I personally go and talk on that topic in different organizations, different companies, okay? Even the NGOs, women's organizations, and the doctors club, engineers club, so many. So everybody has a financial goals. Everybody want to live the happy life. Everybody want to enjoy the life. Okay. So what we have seen, when it comes to the financial goals of individuals, more or less they are same. We want to have a house, 1 house, 2 houses. We want to have the cars. We want our children to get education in the top schools in India and abroad, America. And when it comes to marriage, they want to have the grand marriages. Shaadi badi honi chahiye. And nowadays, people are enjoying the holidays. Not only in India, they want to go for holidays outside India. Now, next to the Chinese, Indian become the second highest tourist abroad. So imagine, so many people are going abroad. Okay? And finally, everybody has to retire. So there is no excuse. Everybody has to retire. And what we are, the retirement age is now shrinking. Shrinking in the sense, people are retiring earlier. Okay. Since I came from the corporate world, I know sometimes people are forced to retire. Sometimes because of the heavy workload, stress, people are taking early retirement. Okay. And that is the scenario. So we are predicting, based on what is happening, people are now retiring at the age of 50, 55. And in the IT world, I have seen people are planning to retire around 45 and 50. Okay. So this is the new trend we are seeing. Early retirement, they want to enjoy the life. They want to get rid of all these stresses, because what we have seen, not only in government organization, in the private organization, there are limited positions now. Companies want to have the more profit. The job quotas, they are in the Google, Microsoft, everywhere. So instead of 2 persons, they are managing with 1 person. So that's the reasons now it is being forced to retire early. So now when it comes to all these goals, you need a money, okay?
So you have to manage your wealth, okay, and also get a freedom, financial freedom. So there are two ways. One is how we can create the wealth. Now, wealth creation is nothing but everybody knows. Let's say if you have 1 lakh rupees and you want to grow it to 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, that is a wealth creation. Okay? But just wealth creation is not enough. Reason is that if you have created a wealth, this your wealth can go up. It can be destroyed, okay, within a few days. And that is what we have seen during the corona time. The life is very uncertain. Anything can happen at any time. Corona is just one example. Now, I got opportunity to work as a social volunteer during that time, and we have seen, I mean, in the hospitals, even in the companies, I mean, so many people have lost their jobs, families have lost their dear ones, and I remember the insurance companies that year issued the highest number of claims for the term insurance. More than 2,000 crores they distributed because those people who had insurance, they had done. And we have also seen those people whose hospital bill has gone to 25 lakh, 30 lakh, and they were not able to pay because they had no insurance. So people were selling their goods, people were even tried to sell their houses. So it's not just creating the wealth, but how you manage your risk. Because when the days are good, people are enjoying. But when bad days comes, it's very difficult. So what I suggest, I mean, wealth creation is a journey, definitely, but at the same time, you should also spend at least 1 rupees of that wealth to protect the wealth. Otherwise, entire wealth will gone off. And there are many examples. Okay. So it's not just the wealth creation, but you should also always reach for the risk management through insurance. Okay. So now question is how I can get a financial freedom. Okay. So everybody want to have the financial freedom. Okay. Now you have two types of income. One is I will say the active income, which is coming through your job. You are working here, you are getting the money, or somebody might be having the business, you are getting the income. So what about the passive income? I mean, that is where now people are saying about a FIRE. That is FIRE is the financial independence, retired early, that kind of thing. But if you have enough money, if you have enough purpose, and you have invested that money where you are getting the returns, which is higher than your expenses. Okay. And we have seen many people, I mean, nowadays that is a trend. Now, whatever you earn, yes, you work hard, but people want now to live the life of their own, and they have enough purpose, they have invested, and they are getting a lot of money out of that, which they are enjoying the life. I mean, getting the, even if you do not have the job, still you can live the very happy life, enjoyable life. Okay. The only thing is that you do not have any debt. Okay. So that is the level we have to reach. Okay. So that you are not only enjoying your time, you are enjoying your life, and that is the ultimate goal. So nowadays that FIRE term is very popular in the IT world, and people are trying to get that. And this early retirement concept has come from that. Okay. So some people will say, why to retire early? But nowadays, trend is like that. People want to live a life on their own. Okay. So we want a financial freedom. So to understand the financial freedom, we have to first see what is the saving. Okay. Normally, let's say somebody's salary is 1 lakh rupees and you are spending the money, 70,000 you have spent and 30,000 left. So that is the saving. Okay. Demonetization time during, I think, 2016, many houses, especially women, have kept the money outside. I know one of my friends is here and he found almost 7 lakh rupees. Okay. And then his wife disclosed that I was collecting that money. Okay. So saving is just, you are getting the money, you are keeping the money outside, that is there. Okay. That is the saving. So what is the ideal way of saving? Saving, it is said in the finance that you should get at least 20% of money outside. That means if you are getting 1 lakh rupees, you keep aside 20,000 and then spend the money. But many times what is happening, I know some of the people in the IT, I mean, they are coming to my class, so I know them. Their salary is very good.
I mean, you will surprise how much they are earning. But at the end of the month, especially in the last week, they complain they don't have money to book the air ticket to go to their home place. So they use the credit card and they get into debt trap. Okay. So it is up to you. If you are able to save, first save it. Otherwise, you are not able to grow. Okay. So that is the very ideal way, that at least 20% of your salary first go to the saving and rest you can spend. Now, just saving is not going to help us. So saving money will not grow. It is just sitting idle. So what you have to do, you have to grow your money. Unless and until money grows, it will not create the wealth. Okay. So what are the ways, I mean, to grow your money? Okay. So first we have to understand the inflation, जिसको हम उसको महंगाई म्हणत असतो आपण त्यांना, कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है ये समझना जरूरी है. लेकिन कई बार देखा है कि लोग आगे भी उतना ही खर्चा समझेंगे, अभी भी उतना ही खर्चा समझे, ऐसा नहीं है. दैट इज वेयर वी आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक्स. आई रिमेंबर इन 2005 समोसा का 5 रुपए में एक समोसा मिलता था. वही समोसा आज 20 रुपए में मिल रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे. समोसा तो वही है, टेस्ट वही है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि समोसा 5 रुपए का समोसा 20 रुपए पे आ गया? या पहले 1000 रुपए में 200 समोसे मिलते थे, अभी 50 समोसा मिल रहा है. तो इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द थिंग. क्या पैसे की वैल्यू जब कम हो जाती है तो वही हो रहा है. तो हमें जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वी शुड नॉट कंसिडर द करंट एक्सपेंसेस. जैसे कि मेरा बेटा अभी 18 साल का है और उसको इंजीनियरिंग करना है, तो सालाना 2.5-3 लाख रुपए लग जाता है. तो अगर उसको 10 लाख रुपए अभी लग रहा है और आपका बेटा अभी 8 साल का है, 10 साल के बाद एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन बाहर जाएगा, तो व्हाट इज द एक्सपेंसेस? तो अभी हमने ये जो एक्सपेंसेस है अभी के रेट से नहीं करने चाहिए, उसमें इन्फ्लेशन ऐड करना चाहिए. अगर हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो 10 साल के बाद अगर उस कॉलेज में जाएगा तो ही हैज टू स्पेंड अबाउट 20 lakhs. ये हो गया एजुकेशन की बात. रहेगी आपकी शादी के बाद. अभी आज शादी के लिए 20 लाख रुपए लग रहे हैं और 8-9 साल में अगर बेटी की शादी तो उसको 40 लाख लगने वाले हैं. 20 लाख का प्लानिंग नहीं चलेगा आपको 40 लाख चाहिए. अभी आपको रिटायरमेंट में 10 साल बाकी है. अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट होम एक्सपेंसेस, 10 साल के बाद आपको 50,000 का प्लानिंग नहीं करना चाहिए, आपको 1 लाख का प्लानिंग चाहिए. तो यू शुड थिंक दैट वे कि आगे का जो एक्सपेंसेस है वो कितने आने वाला है, बिकॉज इन्फ्लेशन हैज अ बिग इम्पैक्ट. और इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में एक ही जैसा नहीं होता है. गवर्नमेंट के लिए जो इन्फ्लेशन आता है नॉर्मली 6%, 7% एवरेज आउट करते हैं. लेकिन अगर जाएंगे तो मुझे पता है कि जहाँ पर मैं एक होटल में चाय पीने जाता 10 रुपये लेता था, अभी 12 रुपये कर दिया. 10 to 12, 20% इन्फ्लेशन. मेडिकल सेक्टर में इन्फ्लेशन 16% है, एजुकेशन में 10%. तो ये 7% की जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, दैट इज नॉट ट्रू. देयर इज अ पॉलिटिकल, देयर इज अ एवरेज आउट इफेक्ट, बट यू शुड बी रियलिस्टिक कि जब भी हम कोई इन्फ्लेशन करेंगे, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर इन्फ्लेशन. तो इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी रीचिंग टू योर गोल. तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. नॉर्मली हम 3 फेजेस देखते हैं कि जब पहले फेज में हमारा एजुकेशन होता है, बचपन होता है, 20-25 साल तक हमारा कोई इनकम नहीं होता है, डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स. और जब सेकंड फेज शुरू हो जाती है, जब हमारा जॉब शुरू हो जाएगा, शादी होती है, बच्चे रहेंगे, दैट इज वेयर द अर्निंग फेज. एंड देन कम्स द रिटायरमेंट फेज. यू आर स्पेंडिंग 1/3 ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फेज, बिकॉज आपके पास अभी पैसा नहीं है. जिन लोगों को पेंशन मिल रहा अलग बात है, लकी आर दोज पीपल. बट अभी जो पैसा आपने कमाया उसको ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स आपको स्पेंड करना है. एंड दैट इज द वेरी क्रिटिकल स्टेज कि जहाँ पर यू डू नॉट हैव इनकम बट जस्ट यू आर स्पेंडिंग द मनी. ओके. तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट एक्टिविटीज, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. तो वेल्थ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो हमारे कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। कई बार देखा है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है, बैंक में डाल देंगे, इधर उधर डाल देंगे, देयर इज नो पर्पस, अल्दो देयर इज अ हिडन पर्पस, लेकिन वो कोई प्लान नहीं होता है। प्लान ऐसा होना चाहिए कि नहीं मेरे बेटे को 10 साल के बाद पढ़ाई करना है, उसके लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हो दैट विल बी अ रियलिस्टिक गोल। बच्चों की शादी है या आपका रिटायरमेंट है, देन ओनली यू हैव टू गेट अ वेरी रियलिस्टिक। दूसरी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक, जैसे कि हम 3 गोल फेस करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म गोल, आप 10 साल के ऊपर जो उसको लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे, मिड टर्म गोल 5 साल के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, ऐसे अलग अलग गोल्स होते हैं। उसके मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि लोगों को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलता है तो पैसा डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो आपको कम से कम 4-5 साल राह देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आज पैसा डालूंगा और 6 महीने में दुगना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 1 साल के लिए या गाड़ी लेना है या 1-2 साल का आपका है, तो उसमें कभी इसमें गलती मत करना कि आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, बेटर वेट यू इन्वेस्ट इनटू सम अदर। ओके, ये भी जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए है। रिस्क एपेटाइट, कि आप कितना रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क आपके डीएनए में है। हर एक बंदा कोई रिस्क नहीं लेता है। कोई लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं, कोई लोग एग्रेसिव होते हैं, और कोई भी, चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो भी लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं उनका रिटर्न भी बनता है। ओके, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो बेस्ट वे आप एफडी में रहिए, दैट इज द वे। अदरवाइज बाकी इसमें जाएंगे तो आपको रिटर्न भी मिलेंगे, रिस्क मिलेंगे, दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट बिहेवियर। आपकी कैपिटल सेफ होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि बैंक सेफ है, यस डेफिनेटली सेफ है, लेकिन कहीं ऐसे बैंक देखे हैं हमने कि जहां पर बैंक टू बैंक आउट हो गए हैं। रिसेंटली 2 साल पहले मुझे पता है पुणे की एक बैंक है, आई थिंक महाराष्ट्र पंजाब बैंक, और मेरे एक कलीग थे, उन्होंने, ही वॉज इन जेट एयरवेज, ही पुट 80 लाख रुपीज, बैंक गॉन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा सेफ रहेगा। स्पेशली वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल बैंक, जो बड़े बैंक है। और गवर्नमेंट भी आपको कितना देता है, जस्ट अगर कुछ हो गया तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो रिस्क इज एवरीवेयर, बट यू हैव टू सी हाउ यू कैन प्रिजर्व योर कैपिटल्स। टाइमिंग, आप कब इन्वेस्ट करते हैं। कोरोना के पहले हमने देखा है कि मार्केट एकदम टॉप पे था, लोग ऐसे ग्रीडी हो गए थे कि नहीं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 महीने में मार्केट इतना गिर गया, ओके, लेकिन उसके बाद वो निकल गए मार्केट में 30-40% लॉस करके, लेकिन जो चलते रहे तो उनका रिटर्न अच्छा बनने लगा। तो टाइमिंग करना डिफिकल्ट है, लेकिन कभी कभी यू कैन मेक द जजमेंट अबाउट द मार्केट टाइमिंग। ओके, और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू 2 असेट, जैसे कि एक असेट 1 है, थोड़ा क्लियरिटी ये है। ओके, एक ऑप्शन है आपके पर जहां पर 1 लाख के 3 लाख रुपए बन रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन में 1 लाख के 2 लाख रुपए बन रहे हैं। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन लोगों को पूछता हूँ तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि 1 लाख का 3 वाला ऑप्शन लूंगा, ऑब्वियसली। और यही हमारे साथ सबके साथ होता है। जो भी कोई हमें बताता है कि आपके रिटर्न्स 1 लाख के 3 लाख मिलने वाले, हम इमोशनल हो जाते हैं। ओके, और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी हैव टू ऑलवेज सी द रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं, मेरे लिए रिटर्न्स कितने मिलने हैं। तो जो ए ऑप्शन था मेरे लिए, उसमें 5 साल लगे 1 लाख से 3 होने में, जहां पर मुझे 40% ही मिल रहा है। और दूसरा जो ऑप्शन है मुझे 1 लाख के 2 लाख हो रहे, हो सकता है 2-3 साल में है, उसमें 40% रिटर्न मिल रहा है। तो डोंट गो विथ जस्ट ऑब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दैट इज वेयर मेनी टाइम्स पीपल आर चीटेड। हम बाकी का पूछता ही नहीं है कि कितने साल में होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, रिस्क कितना है, क्या होने वाले हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर एजुकेशन ऑन योर साइड, कि आप बी watchful and be inquisitive about asking these questions to your advisor. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते तो आज कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल वर जस्ट थिंकिंग अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी पिछले 7-8 साल में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए, और अभी हम इस ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो। ओके, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है, आपके पास इंश्योरेंस है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, क्रिप्टो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ओके, तो जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं
तो 1990 में करीब इंटरेस्ट रेट आपके 15% थे। 15% में पूरी फैमिली जीती थी, इतना सारा इंटरेस्ट रेट था। लेकिन जब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी लिबरलाइज हो जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया, तो जब लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाते हैं। तो 2000 में इंटरेस्ट रेट कभी 22-12% आ गए थे, 2020 में 5.5% आ गए, कोरोना के कारण बढ़ गए। लेकिन अभी जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि बाय 2030 हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 3% हो जाएगा और 2040 में 1-2%, एग्जैक्टली लाइक अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में अभी जो इंटरेस्ट रेट देखेंगे अभी 2% के आसपास है, और जापान जैसे कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट जीरो नेगेटिव है। वहां पर आप पैसा डालेंगे तो आपको पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको उनको पैसा देना पड़ता है। तो दैट इज द इंटरेस्ट रेट हैपनिंग, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो इकोनॉमी ग्रो होती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो आगे जाके अगर आप एफडीज में पैसा डालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रीजन इज दैट आपका इन्फ्लेशन अभी कितना परसेंट है? 7%। गवर्नमेंट का डेटा 7% पे है। आपको रिटर्न मिल रहे हैं एफडी के में भी 6%, 7%, और उसके जो रिटर्न है टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप 30% स्लैब में जाते हैं तो आपका जो 7% मिल रहा है तो उसका इफेक्टिवली 5%। इन्फ्लेशन है 7%। हमें खुशी लगती है कि मुझे 7% मिल गया, एक्चुअली यू आर लूजिंग द मनी, यू आर बर्निंग द मनी। रीजन इज दैट इज अ नेगेटिव रिटर्न्स यू आर जनरेटिंग, -2% यू आर जनरेटिंग। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 7% बहुत खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर दूसरा कोई लोग देखेंगे तो हंसेंगे, एक्चुअली यू आर मेकिंग अ नेगेटिव रिटर्न्स ऑन दैट। So we have to look for the different. Of course, there are corporate FDs भी आती है, अच्छे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस, कई सारे फाइनेंस उनके जो FDs उनके तरफ भी FDs आते हैं, करीब उनका 8-9% भी आता है। बट योर इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन। कहने का मतलब ये है कि आपका इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए, तभी उसमें मजे। अदरवाइज यू आर जस्ट बर्निंग योर मनी, कुछ नहीं कर रहे आप। तो मुझे याद है कि 10-15 साल पहले हम यही देखते थे, लाल पीला हीरा, ये सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। जैसे उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे ब्रीफली, जैसे नेशनल सेविंग का सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, कई सारे हैं। मैं ब्रीफली उसको बताऊंगा अभी क्या उनकी हालत क्या है, तो उसके कंपेरेटिवली। जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लोग हर कोई उठा था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यस आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट। 10-15 साल पहले दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था और ये सारे ऑप्शन उतने पॉपुलर भी नहीं थे। अभी भी वहां पर रिटर्न देखेंगे 7.5% है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C में। लेकिन अभी जो आप सेविंग कर रहे हैं टैक्स के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। एवरीथिंग फ्रॉम दिस बजट हैज स्टॉप्ड। 95% पीपल आर कमिंग टू द न्यू रेजिम। अब जो कुछ भी आप सेविंग कर ले टैक्स के लिए, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। भूल जाइए वो जमाना टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं, नथिंग वैलिड। दूसरा एक हिस्टोरिकल किसान विकास पत्र है, जहाँ पर हमारा पैसा 10 साल के लिए लॉक हो जाता था, रिटर्न उतनी है 7%, उसमें कोई टैक्स सेविंग का नहीं था। ओके। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, इसमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू एफडीज। एफडीज में 6.5-7% मिल जाएगा, 7% लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम थी ना, दैट इज फॉर द लो इनकम ग्रुप। तो हम यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा बदल दिया है, 15 लाख अगर जॉइंट अकाउंट है तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के पास ज्यादा पैसा है, 50 लाख 1 करोड़ है तो नहीं कर सकते। अदरवाइज ऑल द पीपल विल मूव फ्रॉम बैंक टू द पोस्ट ऑफिस। और रिटर्न देखेंगे तो यस 7% रिटर्न है, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, उसका हमें फायदा लेना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना, दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका एक ऑब्जेक्टिव था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें कई एडवांटेज है। एडवांटेज है कि यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, 8.4% रिटर्न मिल रहा है आपको। टैक्स बेनिफिट है, एंटायर अमाउंट यू विल गेट। और लेकिन फर्क यह है कि अपन 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इफ यू इन्वेस्ट बाय 15 ईयर्स, जस्ट 15 ईयर्स इन्वेस्टमेंट करना है, 21 साल में आपको अगर 1.5 लाख के हिसाब से करीब 65 lakhs आपको मिल जाएंगे। तो दोज हु आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, दे शुड इन्वेस्ट। जैसे ही बेटी का जन्म होता है या 10 साल पहले, क्योंकि 15 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। आई मीन एवरीबडी, इवन आई हैव सीन द कॉर्पोरेट में, बड़े बड़े कंपनीज में, सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड,
गवर्नमेंट चाहती है कि आप सब लोग खुशी से रहे, तो कंपलसरी रिटायरमेंट प्लानिंग है आपके लिए। आपके तरफ से 12% जाएगा, गवर्नमेंट के सॉरी कंपनी के तरफ से 12%, तो 24% आपको जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका भी गैर फायदा ले रहे थे, इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने पिछले बजट में एक उन्होंने रेगुलेशन लाया टैक्स बचाने के लिए, स्पेशली बड़ी कंपनी के लोग जो ऑप्शनल प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते थे, अभी उन्होंने लिमिट लगाई कि साला का कुछ 2.5 लाख या ऐसा कुछ है अमाउंट जान सकते हैं, अदरवाइज दैट इज अ टैक्सेबल। So it's a good fund. Good thing about that EPF is that whatever the money you will withdraw at a retirement time, that is a tax free. अगर किसी को 60 लाख मिल रहे, अगर हम टैक्सेबल में आ जाते तो करीब 15-20 लाख तो हमें टैक्स भरना पड़ता था, बट टोटली टैक्स फ्री है, कोई चिंता नहीं है। Okay? So take, I should not say you should take advantage. Everybody has to go there. अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, पीपीएफ जो लोग पब्लिक सेक्टर में तो ईपीएफ मिलता है तो उनको, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में है, जो बिजनेस में, उनके लिए चॉइस नहीं था, तो गवर्नमेंट ने पीपीएफ स्कीम शुरू कर दी थी। इट्स अ वेरी गुड स्कीम डेफिनेटली। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द 15 years बैक, जहाँ आपको रिटर्न्स 12% मिल रहा था। अभी जो रिटर्न्स आ रहा है, और हर क्वार्टरली उसके रिटर्न्स चेंज होते रहते हैं, करीब 7% रिटर्न्स है, 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। नाउ क्वेश्चन इज नाउ वेदर वी शुड इन्वेस्ट इनटू पीपीएफ। यस, छोटी अमाउंट है, 1.5 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन आज के जो लोगों के इनकम से काफ़ी बड़े हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सोच सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन पहले कैसा था कि 100% था, अभी उतना प्राइवेट सेक्टर में उनका कोई उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ दैट। ओके, टैक्स बेनिफिट पर्सपेक्टिव। पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। कुछ साल के बाद सारे कुछ चेंज होते रहते हैं, जैसे कि 2004 साल 2004, those who have joined they are very lucky because they got a government old pension schemes, अच्छा पेंशन मिलता है, 1-1.5 लाख रुपए तो पेंशन आ ही जाता है। लेकिन 2004 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट वांटेड टू फॉलो द अमेरिकन मॉडल। अमेरिका में ऐसा कोई पेंशन स्कीम नहीं है, तो पीपल हैव टू क्रिएट देयर ओन पेंशन, so they started NPS 2004. Actually this is a very good scheme, okay, whereas your money is invested into the different asset, like कुछ पैसा शेयर मार्केट में जा सकता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कई सारे हैं, और रिटर्न्स भी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू इन्वेस्ट, आपके जो रिटर्न्स है करीब 8-10% तो कोई जाएंगे नहीं, इतने अच्छे रिटर्न्स है। और जब आप 60 के होंगे तो आपको 60% मनी यू विल गेट अ टैक्स फ्री। ओके, इस 60% मनी टैक्स फ्री मिल जाएगा, 40% आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है। ओके, तो एंड देयर इज अ टैक्स बेनिफिट, जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट था, लेकिन अभी ये बजट में ये भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो व्हाट गवर्नमेंट वांट टू एम यू, दे वांट टू फॉलो द कंजम्पशन मॉडल। कंजम्पशन मॉडल मीन्स आप खर्चा करो, सेविंग करो, लेकिन सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ पर आपको ज़्यादा मीन्स गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। तो दे कट ऑल दिस टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में एक टैक्स बेनिफिट नए बजट में है कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है उनके तरफ से जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पहले 10% था, अभी 14%, दैट यू गेट अ टैक्स बेनिफिट। अदरवाइज तो ये नहीं है। अभी तो क्या यूपीएस स्कीम आ गई, अभी और एक यूनिफाइड के बजाय और यूनिवर्सल स्कीम भी लाने की सोच रहे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट एनपीएस इज अ गुड स्कीम। ओके, टू पर्पज, वन इज द टैक्स सेविंग एज वेल एज you can also build some the retirement corpus. और एक ऑप्शन सभी लोगों के पास है, जो 15-20 साल पहले सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते, तो मैंने प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, घर लिया, यही सारा बातें करते थे, बाकी तो कोई नहीं था जिसके ऊपर बातें नहीं होती थी। अभी इसमें भी कई ऑप्शंस है, हम घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं। ओके, तो हम घर लेना चाहिए, डेफिनेटली एक घर तो लेना चाहिए, क्योंकि जैसे रिटायर हो जाएंगे तो हम मूव नहीं कर सकते। ओके, और बाइंग ए होम इज मेनी टाइम्स इमोशनल डिसीजंस। ओके, जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ होगा। स्पेशली घर वाले बोलते हैं कि आपको एक घर नहीं 2 घर होना चाहिए, 3 घर होना चाहिए, 4 घर, वटेवर में भी, लेकिन उसका कोई पर्पज होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज से घर ले रहे, दैट्स गुड थिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर ले रहे, नाउ दिस इज अ बिग डिबेट। ओके,
और जो कुछ भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आ रहे दैट इज अगेंस्ट. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स. ओके, मेरा एग्जांपल दूंगा मैं. 2005 की बात है. 2004 में मैंने एक फ्लैट लिया था पुणे में, जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ. करीब 15 लाख का फ्लैट था. अभी उसकी प्राइस 1.25 लाख है. मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने 15 लाख में लिया और 1.25 लाख बन रहे, करीब 1 करोड़ 10 लाख. हाँ, 1.25 करोड़ में बेचा मैंने. सॉरी, उसकी प्राइस है अभी. तो जो गेन हो रहा है 1 करोड़ 10 लाख उसका गेन है. हमें खुशी की बात है ना. तो जब भी हम घर लेते हैं, लैंड लेते, तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं, अमाउंट. ओके, लेकिन जब मैं उसको कैलकुलेशन करता है, एनुअलाइज रिटर्न करता हूँ, तो मुझे देखता हूँ कि कितना आ रहा है CAG. आप जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं, CA करते हैं, कोई भी करते हैं, उसका रिटर्न मुझे 10% से भी नीचे आ रहा है. अभी 10% इससे रीजनेबल. लेकिन मेरे पास अभी ऑप्शन है कि इफ आई हैड इन्वेस्टेड दैट मनी इन सम अदर एसेट वेयर आई एम मेकिंग मनी टुडे 18%, 20%, probably it could have been better decision. Okay, I'm not saying buying a home is okay. You should have one home, but when you are buying a second home, you have to think. I mean, what is the purpose? I mean, you want to generate a passive income or you want to give it to somebody else. But if you are just investing for investing purpose, then there are better options. Okay. और एक है कि लोग घर लेते हैं, दूसरा घर लेते हैं और भाड़े पे देते हैं. अभी क्या हो गया कि जब भी कोई कंट्री की इकोनॉमी लिबरल है तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड रियल एस्टेट. दैट इज द यूनिवर्सल फेनोमेना. शुरू के जो 15 साल थे, 1990 20 साल, करीब 2015 एप्रिसिएशन अच्छा था, 9-10% आ रहा. लेकिन 2015 के बाद ये सेक्टर में एप्रिसिएशन बहुत ही कम हो गया. पुणे जैसे सिटीज में जिन्होंने 2015 में फ्लैट लिया, अभी भी 2025 में सेम प्लेस पे जा रहे हैं. और कई जगह पे 2%, 3%. और दिस इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना कि 20 साल जब भी आपकी इकोनॉमी के रहेंगे, अच्छे रहेंगे गोल्ड के लिए, रियल एस्टेट के लिए, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा इस सेक्टर में, उसके अप्रिसिएशन कुछ नहीं होने वाला है. 2% बिल्डर के लिए बहुत फायदा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. तो जब आप घर भाड़े पे देते हैं तो क्या और कितना आपको रिटर्न मिलता है? इज इट अ वायबल डिसीजन बाइंग ए होम एंड जस्ट गिविंग द रेंट? और एप्रिसिएशन देखो तो 2-3% तो क्या होता है. तो हम इसके कैलकुलेशन करते हैं. इट इज नॉट समथिंग न्यू, आई एम टेलिंग यू. किसी को CA को भी पूछे, किसको भी पूछे, कि काफी सारे खर्चेज होते हैं. जब हम जिसके सोसाइटी का मेंटेनेंस है, घर का मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है. 1 करोड़ का घर है जैसे, उसका रेंट कितना मिलता है? हमारे अच्छे प्लॉट सोसाइटी में भी जाएंगे तो 30-35 हज़ार रुपये मिल जाता है. अगर आपका खर्चा जो आ जाएगा सालाना 70,000 रुपीज खर्चा आ जाता है उसका, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब कैलकुलेट करते हैं हार्डली 2.83%. कोई जगह पे 3% के ऊपर रिटर्न जाता नहीं. एप्रिसिएशन देखेंगे अभी 2-3% का एप्रिसिएशन उसके ऊपर पकड़ लो, जाएगा कितना? 5-6% जाएगा. तो दिस सेक्टर इज लूजिंग इट्स वैल्यू. जो 15-10 साल पहले की जो वैल्यू थी वो लूज कर रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो मानने के लिए ठीक है, मेरे पास 2 घर है, 3 घर है, लेकिन व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. लेकिन दिखाने के लिए अगर किसी को लगना है कि मुझे घर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट व्हेन यू थिंक ऑफ इन फाइनेंस लैंग्वेज, इट हैज लेस वैल्यू. और एक जब भी आप घर लेते हैं तो आप लोन लेते हैं. कोई भी लोग लोन लेते हैं. डेफिनेटली नोबडी हैज 75 लाख 1 करोड़. तो सवाल ये उठता है कि आप जब लोन लेंगे तो 15 साल का लेना चाहिए, या अगर कोई लोन आपको 25-30 साल का देते तो वो लेंगे? क्या लगता है आपको, अच्छा कौन सा लगेगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं? ओके, इधर बोल रहे शॉर्ट टर्म ज्यादा, 15 साल में दे दो लोन, खत्म कर लो. यस सर ना? हाँ, कर्जे से मुक्ति करना है, बस वही हमारा अप्रोच रहता है. तो अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, वहीं से मैंने डाटा लिया है. और किसी को पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म अच्छा है या शॉर्ट टर्म अच्छा है, तो हम लोन के पैसे से भी हम पैसा कमाएंगे. तो मैं डिटेल कैलकुलेशन में जाऊंगा, लेकिन एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया. अगर हम 25 साल के लिए एक लोन लेते हैं या 15 साल के लिए, उसमें EMI में फर्क आ जाएगा. अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.5% मिलेगा. 75 लाख का लोन लेते हैं, अगर मैं 25 साल के लिए लूँगा तो मेरा 75 लाख 60,000 मुझे EMI पड़ेगा.
वही मैं 15 साल के लिए तो 74,000। ये जो डिफरेंस आ जाएगा ना 14,000, इफ आई इन्वेस्ट इनटू अदर असेट वेयर आई एम गेटिंग इवन 12%, मैं लोन लूंगा 25 साल के लिए लेकिन प्रीपे करूंगा 15 साल में, और प्रीपे करने के बाद भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से लोन का पैसा लेके हम पैसा कमा सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वही करते हैं ना, मार्केट से वो 10% से पैसा उठाएंगे और बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई विल टेल यू रियल स्टोरी। मेरा एक नेबर है, ही इज अ बिग डॉक्टर्स इन रूबी हेल्थ क्लिनिक। 4-5 साल पहले मुझे सारी चीजें में इतने डिटेल में जाता था। एक दिन बताया कि वो लोन लेता था। मतलब आपने इतना बड़ा आदमी है, 4-5 घर है, तो लोन लेने की क्या जरूरत है, आपको ऐसा भी पैसा पड़ा है। फिर उसने आपका सीक्रेट बताया, वो बैंक से लोन लेता था, कुछ समय 7-8% लोन रेट था, इंटरेस्ट रेट था। 60% आपको लोन मिल जाता था। 1 करोड़ का घर में 60%। ही वॉज इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड, वहां पर उसको 18% रिटर्न मिलते थे। 18 माइनस 10% वो दूसरे के पैसे से पैसे कमाता था। बैंक भी खुश, ये भी खुश। तो किस तरह से आप, अगर किसी को लोन पैसे मत दीजिए, आप थोड़ा डिले कीजिए, वो पैसा आपको उसमें। इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं सब। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर है तो यू हैव टू डू, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी सारी चीजें होती है। इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड थोड़ी बात करते हैं कि एवरीबडी लव्स गोल्ड, स्पेशली वुमेन्स, दे वेयर्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जब हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेते हैं, इज इट इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इन्वेस्टमेंट? जब हम कुछ लोग हंस रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आज सोने का भाव 90,000 है और आपने 60,000 में लिया था, देन यू आर गोइंग टू टेल योर वाइफ दैट आज 90,000 में बेच दो। ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? घर से निकलना पड़ेगा। तो जब भी हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बेचते नहीं है, दैट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, यस डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। तो थोड़ा गोल्ड के रेट भी देख लेते हैं। आज सोने का भाव करीब 90,000 चल रहा था, आज थोड़ा बदल गया। ओके, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो सोने के भाव करीब, मैंने एक चार्ट में भी दिखा है, तो करीब 1925, कैन यू इमेजिन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द गोल्ड? 1 तोला सोना कितना था? आज तो 90,000 है। एनी गेस? 1925 में सोने का भाव था कुछ 2.5 रुपये 1 तोला मिलता था। 1 किलो 2,500 में मिलता था सोना है। आज वही अभी 1 किलो सोने की कीमत 90,000 हो गए, 90 लाख हो गए। यस, ज्यादा दूर की बात नहीं, 2000 में 4,000 रुपये तोला था, आज 90,000 हो गया। तो गोल्ड इज इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज टेकन एज ए सेफ हेवन। जब भी कोई दुनिया में वार हो जाते हैं तो हर एक कंट्री अपना अपना गोल्ड इकट्ठा करते हैं, तो दिट इज ऑलवेज सेफ हेवन। तो कुछ आपका नॉर्मली 10-15% आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होना चाहिए। गोल्ड इज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग। ओके, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करना चाहिए? डोंट बाय द फिजिकल गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास गोल्ड की ETFs है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, जहां पर आपको गोल्ड, फिजिकल गोल्ड जैसे प्राइस मिलेगा। अगर हम सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल हमें 2.5% भी मिल जाता है। गोल्ड का प्राइस तो मिलेगा ही, 2.5% गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। टैक्स बेनिफिट भी है। अभी पिछले 3-4 महीने से उन्होंने स्टॉप किया थी, अदरवाइज पिछले 10 साल से देखें तो गोल्ड हैज गिवन ए एवरेज रिटर्न ऑफ 12%। दिस इज अ गुड रिटर्न। 12% इज अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, तो सोने में अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आप फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर गोल्ड में, बॉन्ड में करिए। अगर जितना आपको फिजिकल गोल्ड लगता है जैसे शादी के लिए, उतना रखो, कोई हरकत नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप ये गोल्ड बेच के, पेपर गोल्ड बेच के भी आप फिजिकल गोल्ड कभी भी ले सकते हैं। ओके, तो कई बार हम गोल्ड लॉकर में रख देते हैं, तो फिर देखते हैं नहीं देखते अलग बात है, वो पीला सोना काला हो जाता है या क्या हो जाता है किसी को पता नहीं। बट वॉट एवर मे बी, वॉट एवर द इमोशंस वी हैव, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ दैट वे। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, जैसे हमें जब पैसा चाहिए तो हम लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए या कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बेचते हैं, जिसपे हमें वो फिक्स रिटर्न देते हैं। और बॉन्ड का जो रिटर्न है डेफिनेटली FD से ज़्यादा होता है, करीब
8-10% आपको बॉन्ड का रिटर्न मिल जाता है। उसके रेटिंग भी अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको रिटर्न्स एफडी से डेफिनेटली बेटर होंगे। टैक्सेबल बॉन्ड्स आते हैं, अगर आपने लैंड बेच दिया और टैक्स बचाना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां पर रिटर्न ज्यादा नहीं, बट यू कैन सेव द टैक्स। कुछ लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्रिप्टोज में जिन्होंने भी जो वर्चुअल करेंसीज है, अमेरिका यूरोप में आप क्रिप्टो से गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीदी कर सकते हैं। इंडिया में ये डिबेटेबल है, गवर्नमेंट इज अगेंस्ट क्रिप्टो, उन्होंने टैक्स लगा दिया 30%, वॉट एवर में भी ओके। आज क्रिप्टो के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इंडिया में है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंडिया में इन्वेस्ट करता है। और जिन्होंने भी ओके, आई रिमेम्बर मेरा एक कलीग था, उसको एक सेमिनार गया था, करीब 2010 की बात है, ही स्टिल रिक्रिएटिंग दैट वे वॉटर में भी। तो उस समय एक क्रिप्टो का रेट, एक बिटकॉइन का रेट $1 था, $1 का प्राइस था 45 रुपीज था। उसने अपने पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा मुझे 500 रुपये दे दो, मैं करूँगा, लेकिन एट दैट टाइम हिज फादर डिस्करेजिंग एंड टुडे ही इज रिग्रेटिंग वॉटर में भी। आज वही एक बिटकॉइन का रेट $1 लाख मीन्स करीब 8.5। So that is the way it turned out to be. But it's a very volatile, very fluctuation, उसके लिए knowledge चाहिए, skill चाहिए. So this is not everybody's cup of the tea. I am not recommending it, but you should know कि क्रिप्टो जो कुछ भी करेंसीज आ गए, आज 12,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, बट इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं कि व्हाई सो मेनी पीपल्स आर मूविंग टू द स्टॉक मार्केट। कोरोना के पहले आप देखेंगे कि इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है। 40 साल में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट बन गए, लेकिन कोरोना के बाद क्या हो गया कि अगले 4-5 साल में वो 10 करोड़ अकाउंट बन गए। सो मेनी पीपल कैन, उनको लगा कि यस डेफिनेटली, अगर मैं, जब मार्केट शुरू हो गया इंडिया में, अगर मैं 10,000 रुपये तब इन्वेस्टमेंट करता था गोल्ड में, तो करीब मुझे उस 4 लाख रुपए मिलते थे, या एफडीज में मिलते थे करीब 2.5 लाख मिलते थे। इफ आई हैड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट 10,000 की मेरे 45 लाख, दैट आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। मैं खुद स्टॉक मार्केट का कोच हूँ, ओके। उसके लिए कहीं आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस चाहिए, एंड सबसे ज्यादा बिहेवियर्स आपका, बिहेवियर्स इन द सेंस आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस, ग्रीड, फियर, कई सारी चीजें आती है जो सबके बस की बात नहीं है। दैट इज द रीजन 80% पीपल आर लूजिंग द मनी इन द स्टॉक मार्केट। और अगर हम फ्यूचर ऑप्शन की बात करते तो 95% पीपल आर लूजिंग द मनी इन द स्टॉक, ओके। एंड दिस इज द रिसर्च डेटा, आप वेबसाइट में जाइए, सब जगह पे जाता है। तो अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी नहीं है, स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है और बिहेवियर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? द ऑप्शन इज यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ऐसा ऑप्शन है कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, आपके पैसे डेट मार्केट में, बॉन्ड में, जैसा चाहे जा सकते हैं। योर मनी इज हैंडल बाय द एक्सपर्ट। उनका काम वही है कि दे आर एक्सपर्ट, दे नो हाउ टू मनी, वेयर टू इन्वेस्ट, एंड इनफैक्ट यू कैन मेक हायर रिटर्न देन द स्टॉक मार्केट। मार्केट का एवरेज रिटर्न 15-16% है, तो हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न 18-20% भी जा रहे हैं। तो दैट अल्फा इज क्रिएटेड बाय द फंड मैनेजर। तो जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात आती है तो हमेशा ऐड चलती रहती है सचिन और धोनी की। लेट मी सी इट वर्किंग। काफी टैलेंट है आपकी बेटी, पर वही होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, तो फ्यूचर के लिए अभी से सेविंग भी स्टार्ट कर दी। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में, सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाए। सही है, और भी सही है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा एक असेट है, काफी फ्लेक्सिबल है, काफी लिक्विड है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। आज मार्केट पे 2,500 म्यूचुअल फंड है, ओके। 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके।
अगर म्यूचुअल फंड के जो मेजर टाइप देखेंगे तो इक्विटी फंड मीन्स मेजॉरिटी ऑफ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जाएगा, थोड़ा रिस्क रहते हैं लेकिन रिटर्न भी आपके अच्छे बन जाते हैं। डेथ में मीन्स आपका बॉन्ड मार्केट में जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में चला जा सकता है, दोनों का हाइब्रिड भी कर सकते हैं, कई सारे स्कीम्स मार्केट में है। ओके, अगर और थोड़ा और डीप में जाएंगे तो अलग अलग लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कई सारे म्यूचुअल फंड्स है। और जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार हमें बताया नहीं जाता कि स्कीम की रेटिंग क्या है, उसके परफॉर्मेंस क्या है। नॉर्मली हम गूगल पे देते हैं व्हाट इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो गूगल बाबा हमें बताता है कि दीज आर फंड और दीज आर द मार्केटिंग, क्योंकि एक साल के रिटर्न पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको 3 साल 5 साल का रिटर्न देखो, उसके रेटिंग देखो, कैटेगरी वाइज रेटिंग देखो, उसको स्कीम का जो स्टार रेटिंग, तो कई सारी चीजें, इट्स अ बिग साइंस। लोगों को लगता है कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, कई बार कभी कभी बुखार आ जाता तो निकल भी जाता, लेकिन बार बार बुखार आ जाता तो क्या होता है। तो इस क्योंकि इट्स अ वेरी बिग म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक मार्केट जैसा है, कई सारी चीजें, रिस्क, उसकी रिस्क मैनेजमेंट होती है और कई सारी चीजें आपको वेबसाइट में नहीं दिख जाती है। तो अगर मैं एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखूं पिछले 3-5 साल में, इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं कि एवरेज रिटर्न आप देखेंगे अच्छे अच्छे फंड्स के कुछ 20% के आसपास भी आ गए। दैट इज द फैंटास्टिक रिटर्न द लास्ट 5 years मार्केट हैज गिवन म्यूचुअल फंड में। जब हम टॉप लेवल के म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 45 कंपनीज है, वी हैव टू ऑलवेज सी द टॉप कंपनीज। ओके, जैसे कि टॉप कंपनीज में आपको देखेंगे ICICI है या HDFC है, निप्पॉन है, लेकिन कई बार हमने देखा जब हम एनालिसिस करते हैं कोई भी पोर्टफोलियो का, तो ऐसे ऐसे कंपनी के म्यूचुअल फंड देखते हैं कि जिनका ओवरऑल तो ब्रांड वैल्यू नहीं है, उनके जो रेटिंग कम है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, सो यू शुड बी ऑलवेज क्यूरियस व्हेन समबडी इज गिविंग यू द म्यूचुअल फंड कि ये सारी चीजें आप देखना चाहिए, अदरवाइज एनी ब्लाइंड फेथ इज अ वेरी डेंजरस। ओके, जो आपका रिटर्न 20% बनने वाला था अगर 10% बनेंगे और उसमें कंपाउंडिंग का लॉस भी हो जाता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी एजुकेटेड वन कि आपको जो म्यूचुअल फंड दे रहे कोई तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। या क्योंकि इस मार्केट में हमने देखे हैं कि करीब काफी बार सम पीपल्स आर गोइंग विद देयर सेल्फ इंटरेस्ट, थोड़ा अनइथिकल प्रैक्टिस भी होते हैं, खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज द फाइनेंस, आपको कुछ भी बेच के चले जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मेजरली 2 तरीके हैं, एक तो SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने में आपके बैंक से कुछ लिमिटेड पैसे व्हाटएवर में भी 10,000 20,000 अपने आप निकलते जाते हैं, दैट बिल्ड द गुड कॉर्पस। लेकिन कभी कभी हमें बोनस मिल जाता है, कुछ बेच दिया तो उसका पैसा आ जाता, तो वी कैन मेक द लमसम इन्वेस्टमेंट। अभी पिछले 5-6 मार्केट से मार्केट काफी डाउन हो गया, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग लॉट इन द म्यूचुअल फंड। हर महीने में म्यूचुअल फंड में इंडिया में एक लास्ट मंथ हर महीने में 26,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहे, 26,000 करोड़। वही एक अमाउंट है कि जो मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं दे रहा अभी, लेकिन दिस इज द परफेक्ट टाइम कि जब मार्केट गिर रहा है तो अब लमसम की आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। okay? और सबसे ज्यादा इंडिया में जो 5 टॉप सिटीज है उसमें से एक टॉप सिटीज में पुणे भी आता है। सो मच इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन द म्यूचुअल फंड एरिया, क्योंकि दिस इज लेस रिस्की, इट इज वेल मैनेज, इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि आपने म्यूचुअल फंड में फ्रॉड होगा, बिकॉज इट्स वेरी वेल रेगुलेटेड। लेकिन आपका फंड सही होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तो आप SWP रिवर्स SIP बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपका कॉर्पस अच्छा हो गया, मान लीजिए आपको किसी का 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया, एट दैट टाइम इवन इफ यू विड्रॉ करीब 1 लाख को आराम से आपको पेंशन शुरू हो जाएगा 2 करोड़ के कॉर्पस पे, और ये आपकी जिंदगी भर चलने वाला 80 लाइफ एक्सपेंडिचर 80 तक चलने सकता है। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें फायदा लेना चाहिए। जैसे कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन जानते हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट था, बट ही हैज अ गुड सेंस ऑफ द फाइनेंस आल्सो। ही यूज्ड टू से कि कंपाउंड इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, एंड दैट कंपाउंड अप्लाइज इन द म्यूचुअल फंड, और जो ग्रोइंग एसेट है उसमें ये कंपाउंडिंग होता है। तो एक इस रियल स्टोरी, एक मिस अर्ली है और मिस्टर लेट है, दोनों ने कंपनी ज्वाइन की है, दोनों को एडवाइस दिया था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
सीरियसली मिस अर्ली हैज इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड। उसने सिर्फ 10,000 का एसआईपी शुरू कर दिया है, एंड बाय दैट टाइम शी रिटायर्ड शी गॉट अबाउट 5.5 करोड़ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। दैट इज द सेबी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं 12%, लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे रिटर्न तो आपको 15%, 18% रिटर्न आ ही जाते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये महीने भी इन्वेस्ट करते हैं एट ऑफ 25, डेफिनेटली 10,000 नहीं करेंगे आप, आगे जाके बढ़ाने भी वाले हैं। अगर 10% भी उससे बढ़ जाता है तो आपका जो रिटायरमेंट में कॉर्पस से करीब 15 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड दीज आर ऑल रियल एग्जाम्पल, ऐसा कोई ये नहीं है कोई भी फंड लेके देंगे तो आपको इतना रिटर्न। और जो मिस्टर रेटेप उसने सीरियसली नहीं ले गया, उसको बाय द टाइम 45 उसको लगा कि मेरा रिटायरमेंट आने वाला है 15 साल में, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, किसी ने बताया। तो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 25,000 रुपीज, लेकिन उसके पास समय था 15 ईयर्स, तो ही इज गेटिंग जस्ट 1.2 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं, आपको टाइम चाहिए, कंपाउंडिंग के लिए टाइम चाहिए। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे ना तो उतना आपका रिटर्न बनेगा। कई लोग हमने देखे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करते 1-2 साल में निकल जाते हैं, वो कभी पैसा नहीं कमाएंगे। आपको अगर बेकार से बेकार भी फंड देखेंगे और आपको 7-8 साल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, स्टिल पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में करते तो आपको 4-5 ईयर्स का हॉरिजॉन देखे। मार्केट गिर रहा है, भाग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होना, यू विल बी लूजिंग द मनी। एंड दैट इज द प्रिंसिपल, एवरी टॉप इन्वेस्टर इज फॉलोइंग। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ, जो दमानी है, डीमार्ट के मालिक है या राकेश झुनझुनवाला है, अभी जो मार्केट 6 महीने में गिर गया, उनका जो पोर्टफोलियो कितना डाउन हो गया, 25%। उनके लिए 25% मीन्स 50,000 करोड़ का उसका डाउन है, 50,000 करोड़। लेकिन वो निकलते नहीं, उनको पता है कि मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो उससे भी क्रॉस कर लेता है। एंड दैट इज द हिस्ट्री। सो दैट इज वेयर दोज इन्वेस्टेड ए लॉन्ग टाइम, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो दीज आर सम ऑफ द कैलकुलेशन। अगर हम 10,000 की SIP 25 साल में करते तो कितना पैसा मिल जाएगा, 5.5 करोड़। अगर ये हम 35 एज में करते हैं 10,000 तो हमें 1.7 करोड़ ही मिलेगा। तो आपका जो प्लानिंग शुरू होना चाहिए, कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे रिटायर हो गया, मेरे पास इतना पैसा है, भाई क्या करूँ। ओके, अभी सवाल ये उठता है कि अभी आपके पास इतना पैसा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग वी कैन नॉट मेक समथिंग डिफरेंस, लेकिन आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आप जब पहला जॉब करते तभी से शुरू होना चाहिए, नॉट द एंड ऑफ दिस। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जब रिटायरमेंट के लिए 4-5 साल रहते तब उनका प्लानिंग शुरू हो जाता है। दैट इज वेरी रॉन्ग। उनके पास समय कम रहता है, रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए अच्छे फंड नहीं दे सकते। अगर कोई यंग बंदा है उसके लिए हम हो सकता है 20%, 25% की फंड देते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है उनका, मार्केट कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो उनको रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए सिर्फ 10% पे सेटिस्फाई करना पड़ता है उनको, क्योंकि दे डोंट हैव द फ्यूचर इन द सेंस उनका कोई इनकम नहीं रहेगा आगे जाके, और टाइम कम रहता है। तो कई सारे ऐसे प्लान्स हैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग वन बट देर आर मेनी। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम कमिंग फ्रॉम द वन कंपनी। So where it is called the freedom SIP, where you save, where you invest, और कुछ साल के बाद आपको ये पैसा वापस भी मिलने वाला है। एंड these are somewhat guaranteed, they are paying। जैसे कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, दे आर गारंटिंग 1,20,000 पेंशन। ओके, 10,000 के लिए। इमेजिन यू आर इन्वेस्टिंग लेटर 15,000, 20,000, these are the money you can generate। And this is lifetime money। okay, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, वी आर रिकमेंडिंग वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड मार्केट में। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी असेट में, तो टैक्सेस जानना जरूरी है। और ये बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैक्सेस चेंज कर दिए। म्यूचुअल फंड में पहले टैक्स 10% था, वो 12.5% हो गया, कैपिटल गेन बोलते हैं उसको। कई लोगों को लगता है कि मेरी सैलरी उतने तो मुझे इसका टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप असेट में कोई इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप भिखारी भी हो, तो आपको कैपिटल गेन भरना ही पड़ेगा। ओके, तो डोंट थिंक आपको सैलरी के साथ लिंक मत कीजिए। कैपिटल गेन इज फॉर एवरीथिंग। ओके, उसको आप बचा नहीं सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म मीन्स अगर 1 साल के
अंदर आप बेच लेते कोई एसेट तो एक शॉर्ट टर्म आ जाता है, लॉन्ग टर्म मीन्स एक साल के ऊपर जो 12.5% है। लेकिन एफडी में आपको टैक्स 30% जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका टैक्स स्लैब उसको 30%, जबकि आप इस एसेट में 12%, 12.5% वेरी टैक्स एफिशिएंट है। ओके, चाहे शेयर मार्केट हो। अभी जो रियल एस्टेट में भी टैक्स स्लैब बदल दिया उन्होंने, पहले 20% था लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट था, अभी 12.5% कर दिया लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। सो गवर्नमेंट वांट टू कंसोलिडेट टैक्स। अभी जो टैक्स का किताब है 500 पन्ने का, दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट 200 पेजेस सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि कोई उसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इज नाउ प्रमोटिंग वेरी एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, और उसमें हम सेविंग करेंगे ऐसा भूल जाए अभी कि मैंने ये सेव कर रहा, LIC में दिया, अभी कोई फायदा नहीं, नथिंग, कोई ये नहीं है। बस खर्चा करना है तो करो, कंजम्पशन करो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करो और टैक्स एफिशिएंट वे से पैसा बचाओ, वही है। ओके, लेकिन कोई सोचता होगा कि भाई अभी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ, एक साल में बेचूंगा तो इतना बचेगा, दूसरे साल में नहीं। कभी ना कभी आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, चाहे अगले साल भरो, क्या 4 साल के भरो, 5 साल। टैक्स कम करने का एक ही तरीका है, मार्केट डाउन होने तो आपका लॉस हो जाएगा, टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। तो यू शुड टेक प्राइड दैट यू शुड बी हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द। ओके, आपने खुशी मनाना चाहिए कि मैंने ज्यादा से ज्यादा टैक्स किया। अगर ज्यादा टैक्स पे इसका मतलब आपका इनकम भी ज्यादा हो गया। वो मत सोचिए कि मैंने इतना पैसे बचा, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मुझे बताना है कि कई लोग रिस्क मैनेज सही तरीके से नहीं करते। तो एक हमें देखना है कि जो इंश्योरेंस होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू मेक रिच, लेकिन कई लोगों को लगता है कि मैं इंश्योरेंस में पैसे डालूंगा, LIC में पैसे डालूंगा, मुझे इनकम भी देंगे। तो नेवर एवर मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। ओके, ना आपको इंश्योरेंस ठीक तरह से मिलता है, ना आपको इन्वेस्टमेंट होता है। तो दो ही तरफ के इंश्योरेंस से ध्यान देना है, एक तो आपको टर्म इंश्योरेंस, दूसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का मतलब यही है कि आपको गरीब नहीं होने देंगे, लखपति तो कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो डेफिनेटली योर फैमिली विल लिव वेरी हैप्पी लाइफ इवन दो यू आर नॉट हियर। तो ये एक पर्पज है, आपके इन्वेस्ट से कुछ पैसा आप कॉस्ट निकालिए, लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट। तो जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, अभी कई लोगों का एज नहीं है, बट इफ यू टेक द टर्म इंश्योरेंस एट अ वेरी अर्ली एज, 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको हार्डली 15-20 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन फायदा यह है कि अगर आप अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली चला जाता है तो उसकी जो वाइफ है, बेटे है, देयर लाइफ इज वेरी हॉरिबल। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको काफी सारा पैसा मिल जाता है। दैट आई हैव सीन पर्सनली ड्यूरिंग द कोरोना कि एक फैमिली को 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भी मिल गए, और ज्यादा लगता नहीं अभी। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, आपका जो सैलरी CTC बोलते हैं, उसका कम से कम 10 गुना चाहिए। मान लीजिए किसी का सैलरी 20 लाख है तो उसका टर्म इंश्योरेंस 20 लाख का 2 करोड़ का होना चाहिए। दैट इज मस्ट, क्योंकि दिस इज अ वेरी अनसर्टन, किसी को भी कभी भी कुछ हो सकता है। और दूसरा है कि जब भी आप घर लेते हैं ना, उसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस काफी काम आ जाता है। हमने ऐसे कई केसेस देखे कि करोड़ रुपए का घर लिया और घर लेने के बाद बंदा चला गया। आपको भी पता है बैंक कितने स्ट्रिक्ट होते थे, सीधा सीधा घर को लॉक करेंगे, फैमिली को हकाल देंगे, निकालेंगे। लेकिन दूसरी एक केस देखी कि जिन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था इक्वल वैल्यू, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, 1 करोड़ का घर ले रहे तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा किया तो क्या फर्क पड़ेगा। और वो बंदा करीब 5-6 महीने में चला गया, 1 करोड़ का घर उसके नाम पे आ गया। इमेजिन कि क्या हो जाता अगर उसने टर्म इंश्योरेंस लिया। तो इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। तो आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक है, अपना समय गया, लेकिन यू शुड एजुकेट योर चिल्ड्रेन की जैसे ही कोई जॉब लग जाता है सस्ते में आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। एटलीस्ट योर फैमिली इज सेफ। आप नहीं है तो ठीक है, फैमिली तो करने वाले है। दूसरा है एक हेल्थ इंश्योरेंस, इसको भी इग्नोर नहीं कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो मेडिकल एक्सपेंस है काफ़ी बढ़ गए। मैंने आपको पहले बताया कि जो मेडिकल सेक्टर में जो इन्फ्लेशन 15% है, आपको 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको मरने नहीं देते, डेफिनेटली वेंटिलेटर पे तो चढ़ा ही देंगे। और एक वेंटिलेटर पे कोई आदमी चला जाता है तो 50-60 लाख तो डेफिनेटली लग जाता।
ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं कि जिनकी 50-60 लाख भरना पड़ा। ओके, घर में कुछ नहीं है, फिर कौन भरेगा? है बेटा ही भरने वाला है ना। ओके, और दूसरा एक क्रिटिकल इलनेस इतने बढ़ रहे हैं कि जिनका खर्चा ही है 40-50 लाख रुपए। तो इफ यू हैव द इंश्योरेंस, आपको कम से कम 10 लाख से शुरू करना चाहिए और इंश्योरेंस प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि हर साल में वो अगर 100% बढ़ जाता है तो यू शुड गेट द इंश्योरेंस अबाउट 50-60 लाख। अदरवाइज आप तो चले जाएंगे, खुशी से चले जाएंगे दुनिया, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनको ही सब करना पड़ता है। इवन एट द यंग एज 1 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस यू विल गेट, जो बच्चे लोग हैं 20-25 के 15-16 हज़ार रुपये में मिल जाता है। अभी से स्टार्ट करेंगे उसको, तो अगर कुछ भी हो जाता है आगे भी उसकी फैमिली आ जाएगी तो कोई हरकत नहीं, चला भी जाए। तो डोंट मिक्स इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट। जो बोलते हैं कि ये भी करो ये भी करो, यूलिप जैसे स्कीम में यू विल नॉट गेट रिटर्न। तो नाम के लिए कुछ 10-12 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए, कोई भी काम का नहीं है। तो कीप ओनली 2 इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, बाकी कोई नहीं है। और ऐसे कई सारे केसेस है कि जो LIC जैसे इंश्योरेंस में फंस गया। आई एम नॉट अगेंस्ट LIC, बट वो वापस निकल नहीं सकते क्योंकि देर आर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। 10 साल 15 साल इन्वेस्टमेंट करो। ओके, तो जो यंग जनरेशन है अभी, दे रियलाइज इसकी वैल्यू क्या है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर पुटिंग ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट। ओके, शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलता है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो सारा पैसा उसमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ओके, उसका एक फॉर्मूला है। नॉर्मली सभी जो फाइनेंशियली जो बड़ी बड़ी कंपनीज रिकमेंड करते हैं, 100 माइनस योर एज। अगर किसी की उम्र 40 है तो 100 minus 40, 60% you can invest into equity. Equity means it can be mutual fund, equity और the stock market पे जाने वाला है। 40% it should go to the other asset like bonds है, golds है, real estate है, उस पे जा सकते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है उसमें। तो ऐसा मत समझे कि ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं तो उसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाई रिटर्न हाई रिस्क है, तो यू शुड ऑलवेज यू हैव टू प्ले लाइक ए विराट कोहली। कभी कभी आपको चौके छक्के भी मारना पड़ेगा, कभी 1-2 रन भी करना पड़ेगा, कभी आई मीन दिस इज वेयर वी हैव टू प्ले इन द मार्केट। नहीं तो सिर्फ चौके छक्के मारने की कोशिश किए तो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक। तो हमें किस प्रकार का पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर एज। क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा है तो उनको जो इक्विटी का पोर्शन बहुत कम करना पड़ता है, दे हैव टू गो टू द डेट। ओके, दे कैन नॉट टॉलरेट। थोड़ी रिस्क एपेटाइट आपके कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पिछले 5 साल में आपने देखा है कि मार्केट डबल हो गया, गोल्ड भी डबल कर गया, रियल एस्टेट के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन दोज पीपल हु इन्वेस्टेड इन मनी इन द असेट, दे ग्रो इट। और जिन्होंने भी जैसे FD जैसे में किया है तो दे लॉस द मनी। और कई लोग जो कैश पे बैठे हैं, दे आल्सो लॉस द अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, दिस इज अ बिग डिस्कशन। कई लोग बोलते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी करो। मार्केट के लिए कोई एवरी डे इज अ गुड टाइम। मुझे याद है कि 2022 में मेरे पास 4 लोग आए थे, तब मार्केट हाई पे चला गया था। कोरोना के बाद मार्केट हाई चला गया था। तो 4 में से 2 लोगों के लिए कि मार्केट अभी 22,000 है, जब मैं 20,000 पे आऊँगा तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो जिन्होंने भी 10 लाख लगाए थे 2 साल में, उसके 10 के करीब 15-16 लाख हो गए। ओके, फिर जो लोग जिन्होंने नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो 2024 में आ गए, तो उनको बताया कि अभी मार्केट हाई है, दे डिड नॉट इन्वेस्ट। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट कभी नीचे आता नहीं। किसी को पता नहीं मार्केट में कल क्या होने वाला है। नोबडी थॉट यस्टरडे कि मार्केट आज 3000 पॉइंट गिरने वाला, किसी को पता नहीं। तो दो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड कंटिन्यूअसली। आपको एवरेजिंग करना ही है, सोचना मत। टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट है मार्केट को, कोई नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है। इन्वेस्ट, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, SIP जैसा सिस्टम लगाओ। अगर मार्केट डाउन होता है तो आपको अच्छे यूनिट्स मिलेंगे, मार्केट ऊपर का कम होता है। लेकिन आप सोचते रहेंगे कि मार्केट डाउन हो जाएगा तो यू विल बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज। और ऐसे कई लोग हैं कि उन्हें लूजिंग अपॉर्चुनिटीज किया है। जब मार्केट 17,000 पे था, लोग बोल रहे थे कि 15,000 पे है, तो अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। मार्केट तो 24,000 पे भी गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा डॉक्यूमेंट के बारे में केयरफुल रहिए। अभी पहले कैसा तो मैनुअल सिस्टम था, कुछ भी नाम डाल दो कुछ भी हो जाता था।
अभी सारा AI बेस्ड सिस्टम्स आ गया, तो यू शुड हैव योर आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, किसी पुराना नंबर रहते फिर आपको OTP नहीं आता, क्योंकि सारे चीज़ें अभी ई साइन हो गया, आपको मैन्युअली साइन करने के लिए। आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे आपको QR कोड पे, पुराने अगर पैन कार्ड होंगे 10-15 साल पर के, उसको हटा दो, नए बना लो, सेम नंबर रहेगा। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ओके। और आपका जो बैंक अकाउंट है अच्छे बैंक में डालो। गवर्नमेंट के कई बैंक है, उनके IT सिस्टम बहुत वीक होते हैं, कभी कभी चलते भी नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो जैसे 4-5 बैंक बहुत अच्छे, SBI है, आपका महाराष्ट्र बैंक है, यूनियन बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से कोई फायदा नहीं है, उनके सिस्टम लिंक ही नहीं होते हैं। और सब जगह पे आपका नाम चेक करो, एक ही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन के काफ़ी चांस होते हैं। आपको KYC चेक करना पड़ेगा, KYC बहुत इंपॉर्टेंट, उससे तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें अगर आपके इसमें नहीं, लेकिन बच्चों के इसमें ध्यान दे रहे हो कि उनके नाम एकदम सही होना चाहिए, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और इनके सारे जो जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स है, उनका जो बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनके ऊपर नंबर दे दो। अगर 18 साल का बेटा होगा तो उसको उसका नंबर दे दो, नहीं तो कई बार हम ऐसे ही लटक जाते हैं, फिजिकल में करना पड़ता है, बाहर देखो कोई ही नहीं है, ठीक है। तो KYC इज योर आइडेंटिटी, उसके सिवा कुछ नहीं होता। हमने कई लोग देखे कि बोलते कि मेरा KYC हो गया, बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करते, आजकल वो सेंट्रलाइज प्रोसेस हो गया, बैंक वाले आगे डॉक्यूमेंट भेजते नहीं, उनका KYC हुआ नहीं होता। तो यू कैन ऑल्सो चेक योर KYC ऑनलाइन, कई साइट है वहाँ पर जाके चेक कीजिए। विदाउट KYC यू कैन नॉट गो फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट इज लाइक ए ओशियन, हर दिन उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, न्यूज़पेपर ओपन कीजिए, हर दिन आपको अलग ही दिखेगा, हर दिन अलग दूसरी बिल्डिंग देखेंगे। तो इट्स वेरी वाइड। तो ऐसा आप एडवाइजर चाहिए आपको कि हमेशा आपको कोई नॉलेजेबल हो, उसको डेप्थ ऑफ नॉलेज है। बट my intention why I am coming here, though I had a very big job, global job in the John Deere, one of the reason is that I wanted to educate people कि ये मार्केट बड़ा है, लेकिन इस मार्केट में कई सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, कई लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यू शुड हैव सम नॉलेज ऑन दैट। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है फाइनेंस के बारे में है या इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। आई हैव डिस्क्लोज माय नंबर, अभी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर दैट। यस, तो एनी क्वेश्चंस? अगर यस, या तो आपकी उम्र कितने है अभी? 46 है, ओके। तो उसके जो कुछ थंब रूल्स है एज वाइज कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूल है फाइनेंस का, 100 - 46, इट मीन 54% स्टिल यू कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। इक्विटी मीन्स यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड इनटू स्टॉक मार्केट। रहेगी बात 46% की, आप जैसे कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है आपको 6% लेकर 30% के रिटर्न दे सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड है कि जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, एक म्यूचुअल फंड की सिर्फ गोल्ड में करता है, एक म्यूचुअल फंड है कि सिर्फ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है कि आपको हर जगह पे, अगर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड तो कर सकते हैं, गोल्ड में करना है तो कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपका करीब 50% आप इक्विटी में जाइए। और आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा रिव्यू होना चाहिए एज वाइज। मैंने ऐसे कई पोर्टफोलियो देखे कि उसका एज अभी 50 है और इक्विटी proportion 100% है। That's very wrong, क्योंकि वो that is not good from the risk management perspective. So this is the thumb rule you have to follow. As per LPS, Yeah. One good thing what I have seen your investment, you have diversified your portfolio. You have invested into the NPS, you have invested into the gold,
You have also invested into mutual funds. Okay, that's good. Now, what is happening in the market? Let me explain you the India story. हम उसको अमृत काल बोलते हैं. दिस इज अ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया. 1916 में जापान में हुआ, 20 साल चला. उसके बाद यूरोप आ गया, उसके बाद अमेरिका. हर कंट्री का 20-20 साल का पीरियड चलता है अमृत काल. अभी इंडिया का पीरियड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें जो रिटर्न मिलने वाले हैं दैट इज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कुछ भी है. और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो असेट्स आ जाते हैं, स्पेशली आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, जहाँ पर हमारे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 80-20% बच सकते हैं. तो आपको एनपीएस में अभी कैसा है, रिटर्न्स अलग अलग प्रकार के स्कीम्स होते हैं उसमें भी. जैसे टीयर 1 में देखा जाए तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है. गवर्नमेंट स्कीम में, गवर्नमेंट अगर बॉन्ड में करते तो वहाँ पर रिटर्न 8% है. अगर आप कॉर्पोरेट पेड बॉन्ड में करेंगे तो 10% है. अगर आप म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड बोलते वहाँ पर रिटर्न 14% है. तो हमने ऐसे भी देखे लोग जो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका रिटर्न 12%, 13% है. कुछ लोगों का रिटर्न अभी भी 8% है. लोग कंपेयर करते हैं, मेरा रिटर्न 8% पे, आपका रिटर्न 14% पे, 13%. तो और गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉक लगा दिया. जैसे ही आप 50 के ऊपर जाते तो इक्विटी में आपका जो 75% इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप 50% पे कर देते हैं कई सारी चीजें. तो वहाँ पर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है. एनपीएस में आप करो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है. और प्रोडक्ट ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड में काफ़ी है. म्यूचुअल फंड का एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि लिक्विडिटी काफ़ी है. अगर आपको घर बेचना चाहिए तो इतना आसानी से घर नहीं बेच सकते, मकान भी नहीं बेच सकते. लेकिन आप म्यूचुअल फंड में अगर आप आज ऑर्डर देते तो 2-3 दिन में आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है. कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है. तो टुडे दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वी आर सीइंग. इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो. आप थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करो, थोड़ा एनपीएस में भी करो, थोड़ा गोल्ड बॉन्ड्स है या बाकी इसमें कर सकते हैं. ये यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि थंब रूल्स है, जो जैसे कि अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि आपका इक्विटी में, जैसे कि आपके लेट से एज इज 50 तो 50% हम इक्विटी में जाएंगे, 10% गोल्ड में जाएंगे, 10% बॉन्ड में जाएंगे. इस तरह से पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. रहेगी बात एनपीएस और यूपीएस की, काफ़ी डिबेटेबल है. किसी को जब भी ऐसे इसके बारे में सुनता हो किसी एक्सपर्ट से, हमेशा अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. तो नोबडी इज परफेक्ट इन एनी ऑफ द स्कीम. लेकिन जिन्होंने भी एनपीएस में किया, जो माइग्रेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली देयर इज एडवांटेज इन द सेंस कि उनको जो मिनिमम 50% पेंशन गवर्नमेंट देने वाली है. अभी ये समझ में आता है कि अभी एक स्कीम में है और दूसरे स्कीम में जाते तो उसका एग्जैक्टली क्या होना है, नोबडी हैज अ राइट आंसर एट दिस टाइम. किसी के पास उसका कैलकुलेटेड आंसर नहीं है. गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा बताया जाता है कि ये अच्छा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन तो दे आर अपोजिंग. तो नाउ दे आर वांटेड अ यूनिवर्सल पेंशन, की एक नया अभी पेंशन स्कीम सोच रहे हैं. नाइदर इट इज एनपीएस, नाइदर इज. तो ये डिस्कशन चलने वाला है. तो लेट इट कंटिन्यू जो आप कर रहे हैं. लेकिन जो पोर्टफोलियो मैं जो बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो वो आपको थोड़ा उस तरह से बैलेंस करो. तो जो डिबेट है वो वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. Now, market was very volatile. Today is near about 3,000 reduction in market. What is there in 1 year? सी मार्केट का जो करेक्ट प्रेडिक्शन 1 साल के करना ही नहीं चाहिए. और जो लोग 1 साल का मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी मार्केट में जीतते नहीं है. मार्केट का अगर प्रेडिक्शन करना है तो 5 साल का प्रेडिक्शन करो, क्योंकि मार्केट 1 साल में ऊपर नीचे होते हैं. पिछले 25 साल में मार्केट में 25 बार करेक्शन किया. आप जो देख रहे हैं अभी, आपको 5 साल में लोग खुशी खुशी से एंजॉय कर रहे थे, कभी देखा नहीं था. लेकिन पिछले 25 साल में 10%, 15% मार्केट में करेक्शन हुआ. कोरोना के टाइम 35% हो गया. क्या फर्क पड़ा, मार्केट ऊपर ही गया. लेकिन लोग क्या घबराते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं, लॉस करके निकल जाते हैं. लेकिन अगर आपका हॉराइजन 5 साल का है तो डेफिनेटली पीपल हैड मेड द मनी. कोई ये नहीं है. तो डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट. मार्केट का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता. ना जो बड़े बड़े हाउसेस है, जो जेपी मॉर्गन हो अमेरिका के है, वो बोल रहे थे कि कोरोना के बाद मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा. सेंसेक्स वो 85,000 चला गया. नोबडी नोस. ये एंटरटेनमेंट के न्यूज़ होते हैं, टॉप न्यूज़ होते हैं.
लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे वारेन बफेट है, और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता तो हम इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता तो निकलते रहते मार्केट में। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही है कि अगेंस्ट मार्केट खेलते हो। अभी मार्केट गिर गया तो इन्वेस्ट करना चाहिए, डोंट वरी कि अभी मार्केट और नीचे जाए, तो एवरेजिंग आउट करना बहुत जरूरी है। जब ऊपर जाएगा तब सेल नहीं करते, तब और इन्वेस्ट करना करते हैं। वेगवेगळे फायनान्सर एसआयपी इन्व्हेस्ट करतात. कोणती फायनान्सर आहे एसआयपी इन्व्हेस्ट केली. आम्हाला जेवढं नॉलेज नसतं ते आम्ही कॉमन माइंड एसआयपी घेऊन देतो बघा कंपनी. एसआयपी घेताना काय पाहायला पाहिजे? Yeah. So this is a very practical questions every investor is facing, and in the last couple of years, I am reviewing the portfolios of many of my colleagues in the corporate who are investing in crores, okay, and some of the people. तो मैंने देखा है कि जो फंड्स आ रहे थे, जो आपके पोर्टफोलियो में फंड्स आ रहे थे, वो जैसे चाहे वैसे नहीं थे, कि उसका एक क्राइटेरिया होता है, ओके। क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके जो क्रिसिल रेटिंग होते हैं, क्रिसिल रेटिंग जो स्टार रेटिंग बोलते हैं, उसका जो रेटिंग कम से कम 4 और 5 होना चाहिए। अगर आपका 1 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग में करते हैं तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाए, मीन्स देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड। सेकंड है उसका जो रैंकिंग देखना चाहिए कि मार्केट में उस कैटेगरी में, मान लीजिए कोई इक्विटी फंड है, उसमें पिछले 3 साल में अगर 50 म्यूचुअल फंड आ रहे तो उसका रैंकिंग कितना है, उसका रैंकिंग फर्स्ट 5 में तो होना चाहिए ना। अगर आपका 50 म्यूचुअल फंड है उसका रैंकिंग 45 है तो उसके क्या मतलब है, इसका मतलब कि 45 फंड उससे भी बड़े परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। तीसरा उसका कंपैरेटिव कंपैरिजन बनना चाहिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड कोई देता है तो आप उसको पूछे कि और कोई फंड है कि जो रिटर्न दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आप 5 से कंपैरेटिव फंड मिल जाते हैं। अब जैसे आप कोई खरीद करना है गवर्नमेंट में तो आप कोटेशन मंगाते हैं, उसी तरह का उसका कोटेशन में देखना चाहिए कि 5 फंड है तो उसमें कौन सा अच्छा है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, उसके अलावा भी उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, थॉम्सन रेशियो, कई सारी चीज़ें, बट दीज आर द 80% इट विल कवर। तो आप ये क्वेश्चन उनको पूछो, कि उसको क्वेश्चन करो कि ये कितना है उसका, ये क्या है। अदरवाइज आपको लगता है कि 12% रिटर्न देना, यू आर फुल्ड इन द सेंस कि बाकी फंड 18% 20% रिटर्न दे रहे हैं सेम पीरियड में, और आपको 12% में आप खुशी मना रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। तो कहीं ना कहीं जब आप कंपैरिजन करेंगे आपका, तभी पता चला कि हम कितने पानी में, अदरवाइज हम हमेशा खुशी रहेंगे। इसमें अपने पास से म्यूचुअल फंड बताया, हाउ यू लुक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड को सेक्टरल फंड भी बोलते हैं, थीमेटिक फंड बोलते हैं। तो कोई भी थीम आती है ना, जैसे कि भी सोलर की थीम आ गई, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की थीम आ गई, या अभी डिफेंस की थीम आ गई, उसका एक ड्रीम तैयार किया जाता है। ड्रीम मीन्स कि आगे जाके ये बहुत बड़ा बनने वाला है। जैसे एक मुझे पता है कि नागपुर में एक मियान प्रोजेक्ट आया गया था, इतना थीम तैयार किया कि सारे लोग उसके प्लॉट लेने लगे, कितना किया। मेरे ससुर ने भी किया था, मुझे भी फंसाया गया उसमें, ठीक है, 20 साल पहले की बात है। उसमें क्या निकला, तो हिस्ट्री सेज अगर 10 ऐसे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड आ जाते तो उसमें से 1-2 ही सक्सेस हो जाते। सक्सेस रेट बहुत कम है। तो इससे बेटर है कि अगर आपको लेना ही है तो 10 में से एक आधी ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड इट, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस पता नहीं होता है। कोई भी चीज मार्केट में बेची जाती है तो इमोशंस पे बेची जाती है, बिकॉज आई केम फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड। मार्केटिंग में आपको इमोशंस के साथ खेला जाता है, आपको अच्छे बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सपने पूरे होने के चांसेस 10 to 20% होते हैं। तो दिस इज अ रिस्क, ओके। तो हमें मार्केट में जब भी रहेंगे तो रिस्क को ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिटर्न बाद में आ जाते हैं। लेकिन पीपल इतने सपने में डूब जाते हैं कि पैसा लगाओ, बाद में कुछ फायदा नहीं होता। In stock market, there are many companies, large cap, mid cap, and small cap. In which type of companies you invest? इसके लिए आपको 4-5 साल का ट्रेडिंग लगेगा। इतना आसान नहीं है। हाँ, ओके, हाँ बात।
तो अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो रूल सेज कि आपको आपके पोर्टफोलियो का 5 से 7% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे काफ़ी तेज़ी से भागेगा। मुझे पता है कि 2023 में उसने रिटर्न्स कितने दिए स्मॉल कैप में, ऑलमोस्ट 40-50% देते एक साल में। अभी वही फंड देखेंगे तो अभी 40% 50% डाउन आ गए, पर ऑलमोस्ट 7 से 8% आपको उसमें ले सकते हैं। ओके, 7 to 8%। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड तो एक आधी म्यूचुअल फंड आप स्मॉल कैप का ले सकते हैं। अगर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे लेकिन रिस्क भी बहुत है, जितना तेजी से भागे तो उतना वो गिरा देगा आपको, तो इट्स वेरी रिस्की। इट्स बेटर टू फोकस ऑन द मिक्सअप, जैसे लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो, थोड़ा स्मॉल कैप से संभाल के रखिए। आपको बहुत बहुत एंजॉय तो कर लेंगे लेकिन दुख भी उतना ही देता हो। आपने इतना सोचा तो इन्वेस्ट करता है, हम लोग इतना सारा तो इन्वेस्ट किए और Yeah. Yeah. ओके, जब आप बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग में पैसा रखते हो, आपको रिटर्न कितना मिलता है सेविंग में? 4% पकड़ लो। बैंक क्या करता है आपके पैसे को? 4% आपसे लेगा और दूसरे को कितना देता है? 8% पे देता है। ठीक है, तो उसके कोई लिमिटेशन है बैंक को, लेकिन म्यूचुअल फंड के ऊपर लिमिटेशन है। आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो एक्सपेंस काट के ही मिलते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी रहती है उनके कोई बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, रिसर्च टीम होती है उनकी, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनका खर्चा होता है। वो जो खर्चा होता है 1.5 to 2% होता है। ये काट के जो रिटर्न दिए जाते हैं वो पैसा निकाल के, जो खर्चा निकाल के होते हैं, और आपको भी 18-20% रिटर्न दे रहा है। आपको क्या चाहिए? अगर वो 1.5-2% अपनी इतनी मेहनत लगाते हैं और बैंक वाले आपको लूटते हैं 4%, फिर भी उसमें खुश है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले 1.5-2% आपका पैसा मैनेज कर लेते हैं, तो हाँ, ईटीएफ भी है लेकिन ईटीएफ में रिटर्न नहीं है ना, प्रॉब्लम ही है। आज आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिटर्न है। ईटीएफ में रिटर्न आपको लिमिटेड रिटर्न है। आपको क्या चाहिए? अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। So, is there any tax exemption which will green plan for long-term capital gain? Should we go for this plan or separate term plan and तो यूलिप वही हो गया कि उसमें इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट है, और यूलिप में रिटर्न्स नहीं बन रहे। 10% 11% रिटर्न बन रहे, खर्चे ज़्यादा है। तो यू शुड कीप अवे यूलिप। यूलिप लोग इमोशन के कारण बेचे जाते, वो कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, लोग उसमें फंस जाते पर रिटर्न नहीं है। इट्स बेटर यू शुड हैव इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड हैव इंश्योरेंस सेपरेट। थोड़ा टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। अगर 2.5 लाख तक आपका यूलिप में इन्वेस्टमेंट, तो उस पर टैक्स बेनिफिट है, लेकिन टैक्स बेनिफिट के पीछे आपको क्या बचने वाला है? 1 लाख के ऊपर कुछ नहीं है। तो और उसमें इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपको काफी वो चार्जेस लगा देते हैं, तो एवरेज रिटर्न अगर देखेंगे यूरोप में 10-11% के ऊपर नहीं जाते हैं। इट्स बेटर है, अगर आपको इंश्योरेंस है तो सेपरेट टर्म प्लान लेके, यूलिप के वजह आप म्यूचुअल फंड में लेके, वहां पर आपके रिटर्न 15-16% एवरेज तो कहीं ना कहीं, यहाँ पर 10% क्यों लेते हैं? तो कई सारे लोगों को इमोशनली उसको पुल किया जाता है। स्पेशली बैंक में ये सारा होता है। अगर आप जाएंगे बैंक में और बोलेंगे 10 लाख रुपए, तो बोलेंगे 5 लाख आप म्यूचुअल फंड में डालें, और बाद में बोलते हैं कि 5 लाख आप यूलिप में डालिए। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है यूलिप में, क्योंकि दे हैव द सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट। क्या? हाँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है ना, डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में रखो, गोल्ड ईटीएफ में। गोल्ड के एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं ना, करीब 12% मिल रहा है एनुअल राइज रिटर्न, तो फंटास्टिक रिटर्न है। तो स्पेकुलेशन को छोड़ दो, पिछले 200 साल का हिसाब निकालो। अगर कुछ नहीं होने वाला है, गोल्ड का प्राइस हमेशा ही बढ़ने वाला। आप 1 साल का पिक्चर मत देखो मार्केट में। 1 साल का रखेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देंगे। नहीं,
No. डॉक्टर समोरून बोला ना. हाँ, आप क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ. What these observation is gold prices are increasing. And don't think of 1 year or 2 years. Minimum 5 years का आपको देखना. हाँ, वो करो, एक साल का मत सोचो, कल का मत सोचो. ये न्यूज आते हैं ना, कई बार स्पेकुलेशन हो जाता है, किसी को पता नहीं होता, किसी ने बोल दिया मार्केट में. हम कई बार ऐसे न्यूज सुनते हैं, कोई उसके ऊपर भरोसा मत रखो. बड़े बड़े जो टॉप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इग्नोर करते न्यूज को. अनफॉर्चुनेटली कॉमन मैन उसको ज्यादा ध्यान देता है. ये होता ही है, शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट नीचे जाएगा, ये कोई ये नई बात नहीं है. लेकिन हमेशा मार्केट ऊपर ही रहा है 5 साल में. हिस्ट्री से अगर हो गया, न्यूक्लियर वार हो गया तो क्या अलग बात है, बट अभी तक को ऐसा कुछ नहीं हो, होने भी नहीं देंगे. तो देखो ना, अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना होता? तब भी गोल्ड हाई पे था, अभी भी गोल्ड हाई पे है. करो, इन्वेस्ट करो, कोई होता नहीं, और बढ़ेगा. Yes, thank you, sir. Hello. Thank you, Mr. Chandrakant, for educating us in the financial management. Very actually in the university, when we were at the faculty of science, we usually always the accounts code of the university and the corporate name of the university. And the personal finance management we usually neglect. But this is a very good opportunity. सबसे बड़ा रुपया. And he is a master's from IIT Kharagpur, and you must have seen that the IITians after their graduation they are becoming masters in finance. This is a trend for last 10 years. तो IIT के बच्चे भी finance में जा रहे हैं, and that's why the finance is becoming very important. Secondly, you mentioned about the retirement and the people are retiring because in corporate world that may be the situation, but in universities we are academician, educationists, scientists, and we don't want to retire, at least from the active services, and that's why we might have not listened to the this financial management, personal financial management, and you have given us a very good education, and your presentation was very nice. The first time when I contacted Mr. Turari, that time we wanted to collaborate with John Deere. He was working in John Deere, and we wanted, because as we have the collaboration with other manufacturing companies, tractor companies, machinery companies. First time we contacted him. That time he was in John Deere. Next time I contacted him for the university technology management system, because the technology monitoring system committee is here. Then I contacted him. That time he said I left John Deere, and I'm managing now. I entered into finance. So he also finally entered in the financial management, and he suggested another person from John Deere. He's in our UTMC, Bharat Gholab, right? So he's a person from John Deere. So that's how he has shifted from the corporate world to the financial, as a financial manager and advisor. I hope the interactions were very good, and we have a large number of faculty, young faculty, who are in between 30 to 40 years. Even senior faculty is also in the same range, and they are confused about NPS and UPS, and that's how they can go through your advice of the financial management in future, and for the management post-retirement. So I again thank on my behalf and on behalf of the organizers, Mr. Chandrakant. This was a very interactive and nice presentation by you. Thank you. Thank you, sir. And special thank you for Shri Chandrakant Turare, sir, for valuable information and guidance shared with us. Today, we understand the actual meaning of financial literacy,
तर we understand that financial literacy is not just the accumulating the wealth, but we can understand how to invest it and secure the future and achieving a financial independence. I think it is a time of vote of thanks if the chair. Thank you. Respected dignitaries on dais and Honorable Vice Chancellor who is joined online, and all the literate financials of the university, those who are eager to invest many more in many ways. And I am especially thankful to Dr. Indramani sir, who is very interesting about this financial management as well as the academic management. And many times he discussed this issue. We have to some plan, and accordingly we have to make a roadmap and achieve the success in terms of health, wealth, and academic our progress. These things are very much important, and on that path we are going on. And part of that, because if we have a proper finance achievement and we can very in a healthy manner do our work, financial worries are very bad, and that's why we have to give some path on that line, and accordingly we call Mr. Chandrakant Turare, who is my classmate from 5th standard at 1 year. Thank you very much, Chandrakant, who guided us very nicely. Many of our agriculturists, our agriculture academicians, and our staff of control office and other office, they are doing some well, but your lecture highlighted many more schemes and many more options to us, and it is a starting to think about the financial management. Now, I very much thankful to Dr. Asewar for his presence and guided us. Also, Dr. Ramteke, who has organized this program very nicely in a short time. And I also thankful to Dr. Yum Kodke, who came from Wardha, and after that, a very little time, he came here and guided us and encouraged to all of us in many times, many more ways in every function of the university. I express my thanks to Dr. Sritsagar and Dr. Jayamangal Madam. I also express my thanks to all the head of department, associate dean, professors, then all academic staff and ministerial staff, and also students also who participated in this seminar. Because मराठीमध्ये म्हणतात की पैशाचं झाड लावणे, जेवढं झाड लवकर लावाल तेवढी त्याची मोठी सावली होईल, त्याचा डेरा मोठा होईल आणि त्याचं फळं पण मिळतील. त्यांनी तुरारेंनी सांगितल्याप्रमाणे असं आहे की तुम्ही जर नोकरीच्या सुरुवातीला जर झाड लावलं तर ते मोठं होतं आणि त्याचा फायदा, त्याचे फळं हे चांगल्या प्रमाणात मिळू शकतात. रिटायरमेंटच्या आलेल्या लोकांना मोठा पैसा दिसतो, पण तो इन्व्हेस्ट करायसाठी वेळ नसतो. तरी पण त्यांच्याकडे बरेच काही ऑप्शन असतील, ते आपल्याला 1-to-1 गाईड करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आणि सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल सर्वांच्या इथे धन्यवाद मानतो. ऑर्गनायझरनी